Assalamu alaikum everyone. Today we have to cover the important interview questions on stack. That what is stack? To go through that question, we have to know about the stack. That what is a stack? So let's start. Stack is a linear data structure used for temporary storage where element can be inserted or deleted at only one end called top of the stack. ये स्टैक एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को इंसर्ट भी कर सकते हैं और उनको डिलीट भी कर सकते हैं और सिर्फ एक एंड से जो हमारे पास होता है टॉप ऑफ द स्टैक। और इसके लिए एक रूल होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। मींस जो एलिमेंट हम लास्ट पे इंसर्ट करते हैं स्टैक के अंदर उसको हम सबसे पहले आउट कर सकते हैं और फर्स्ट इन लास्ट आउट कि जो हम एलिमेंट फर्स्ट पे इंसर्ट करते हैं उसको हम लास्ट पे बाहर निकालते हैं। इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है स्टैक ऑफ सब्जेक्ट बुक। ये सेम इसी तरह काम करता है कि ये जिस तरह हमने बुक्स रखी हुई हैं, जो बुक हमने सबसे पहले रखी है इसको हम सबसे आखिर में बाहर निकाल सकते हैं और जो बुक हमने लास्ट पे रखी है उसको हम सबसे पहले बाहर निकाल सकते हैं और जो बुक हमने सबसे पहले रखी थी उसको हम सबसे आखिर में बाहर निकाल सकते हैं वन बाय रिमूविंग ऑल दीज बुक्स। इसको आखिर में बाहर निकाल सकते हैं। आगे है इम्प्लीमेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक। वी हैव two ways to represent or implement stack. First is static, sequential or array representation, and the second is dynamic, pointer or linked representation. With the help of stack representation, in this case of array, stack is also a collection of homogeneous equation. Homogeneous एलिमेंट्स का मतलब ये है कि हम वो एलिमेंट्स इसके अंदर रखवा सकते हैं जिनकी सेम डाटा टाइप हो और therefore stack can be easily implemented using array. array के अंदर भी हम homogeneous elements को स्टोर करवाते हैं और इसीलिए हम array के थ्रू इसको easily implement करवा सकते हैं क्योंकि दोनों के अंदर सेम डाटा टाइप्स होती हैं इसलिए। और इसके अंदर हम दो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, पुश एंड पॉप। इसके और भी काफी ज्यादा ऑपरेशन है जो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। जो पुश ऑपरेशन है उसको हम डाटा इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं और पॉप जो है इसको हम डाटा डिलीट करने के लिए यूज करते हैं एट द टॉप मोस्ट पोजिशन। और जो एलिमेंट स्टोर्ड फ्रॉम स्टैक 0 टू स्टैक टॉप, ये हमारे पास बॉटम ऑफ स्टैक होती है, बॉटम ऑफ स्टैक, एंड दिस वन इज द टॉप ऑफ द स्टैक। And the next is stack 0 is the bottom of the stack and stack top is the top of the stack. और जहां हमारे पास top is equal to -1 होता है, it indicates that stack is 0 because when top is equal to 0 it is the bottom of the stack and now it move further, and when top is equal to minus it indicates that it indicates that the stack is the empty, there is no element in the stack. In dynamic or linked representation, stack is a collection of nodes where each node is divided in two parts. What is node? Like for example, this is a stack and the node is this is a node, these are the nodes, and each node has two parts. Each node contains two parts. At first place of node, we store the value of that place. It contains the value like 0 or 2. And here the top is, here the top is is 0 or null. This indicates that it is a bottom of the stack in dynamic or linked representation. Now it has some address, like it contains 100. The next node
contain its own value, like it will contain 3, but its address will be 100. The second node will have 100, and it will have its own address, which will be 200, which is the address of the third node, like it will be 200, and its value will be 4 something, and its own address is 300. In nodes, in linked representation or dynamic representation is something like this. And the next is top of the stack is represented by a start pointer of linked list. This is the top of the stack. It represented by a start pointer of linked list. And if start equal to 0, it shows that the stack is empty, and top equals to null. Means before, if top contain no values, means the last node. If the top equals to null, it indicates that it is the bottom of the stack. And now its address will be the address of the second, with the address of the second node of next node. This is a graphic representation of stack. इसके अंदर हम दो ऑपरेशंस यूज करते हैं, पुश और पॉप. पुश मीन किसी स्टैक के अंदर डाटा को स्टोर करवाना, उसके अंदर इंसर्ट करवाना डाटा को पुश कहते हैं. इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है. जब हमारे पास टॉप इज इक्वल टू 0 -1 होता है, मतलब देयर इज नो डाटा इन द स्टैक. और जब हमारे पास टॉप इज इक्वल टू 0 हो, मीन ये टॉप इज इक्वल टू 0 है. इसका मतलब है फर्स्ट पोजीशन, हम सबसे पहले इस पोजीशन पे डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, वो है 2. फर्स्ट पोजीशन में हमारे पास गिवन टॉप इज इक्वल टू 0, उस पोजीशन में हमारे पास पड़ा हुआ है 1. उसके बाद हमने इंसर्ट की, पुश किया है इसके अंदर 2, और जब टॉप इज इक्वल टू 1 हुआ तो उस पोजीशन पे 2 आ गया. देन इसी तरह फर्दर ये सारे जो है वैल्यूज, उनको हमने स्टैक के अंदर पुश किया है. और पॉप ऑपरेशन जो होता है, ये डाटा को टॉप मोस्ट पोजीशन से डिलीट करवाता है, उसको रिमूव कर देता है स्टैक पे से वन बाय वन. और दिस इज अ डायनामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक. This is a node which contain two parts. The first contain the value and the second contain the address. Here the address is null. Here the matlab top is null. Operations on stack. These are the we have a lot of operations which we perform on the stack. The first is push operation. Place an item on the stack. If there is no place in the stack, then the stack is overflow. हम किसी स्टैक के अंदर डाटा इंसर्ट करवाने को या डाटा स्टोर करवाने के लिए हम पुश ऑपरेशन यूज करते हैं, जो 1 बाय 1 डाटा को स्टोर करवाता है. और अगर डाटा जो है वो ऑलरेडी, जो हमारा स्टैक है वो ऑलरेडी फुल है, उसके अंदर हमारे पास 3 साइज है उसका, ये 4, और वो फुल है, उसके अंदर कोई प्लेस नहीं है डाटा को स्टोर करवाने की, तो ये कंडीशन हमारे पास होगी ओवरफ्लो कंडीशन. अब हमारे पास 4 इसका साइज था, और हमने इसको अब इसके अंदर एक और हम वेरिएबल जो है वो स्टोर करवाना चाहते हैं स्टैक के अंदर, तो ये नहीं स्टोर करवा सकेगा, और ये कंडीशन होगी ओवरफ्लो कंडीशन. नेक्स्ट है पॉप ऑपरेशन. पॉप ऑपरेशन क्या करता है, ये रिमूव करता है स्टैक में से डाटा को. अगर स्टैक जो है हमारे पास इक्वल, अगर हमारे जो स्टैक है, स्टैक के अंदर हमारे पास जो टॉप वेरिएबल होता है वो हमारे पास इक्वल टू -1 हो, इक्वल टू -1 हो, तो क्या होता है कि हमारे पास ये कंडीशन आती है अंडरफ्लो. जब हमारे पास स्टैक के अंदर कोई भी वैल्यू ना हो, मतलब ये तो हमारे पास टॉप इज इक्वल टू 0 होता है, इससे भी नीचे हमारे पास जो पोजीशन होती है वो -1 की होती है, और इस कंडीशन को अंडरफ्लो कहते हैं जब हमारे पास स्टैक बिल्कुल खाली हो, और हम इसमें पॉप नहीं करवा सकते. मींस इसके अंदर कोई, इससे इस स्टैक के अंदर से हम कोई डाटा डिलीट नहीं करवा सकते.
और थर्ड ऑपरेशन है पीक। पीक के थ्रू हम लोग किसी स्टैक में किसी भी पोजीशन पे कोई भी वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। और ये पॉप और पीक के दरमियान बेसिक डिफरेंस ये है कि पॉप में हम वो टॉप मोस्ट एलिमेंट को रिमूव कर देते हैं और उसको एक्सेस करते हैं और डिलीट करते हैं। लेकिन पीक में हम लोग जो पोजीशन एक्सेस कर सकते हैं उसको हम सिर्फ शो करवाते हैं, उसको हम डिलीट नहीं करते। और द फोर्थ ऑपरेशन इज एम्प्टी, टेल्स द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। इसका मतलब है अगर हमारे पास टॉप इक्वल्स टू -1 होगा तो ये हमें बता देगा द स्टैक इज एम्प्टी। इसका मतलब है कि स्टैक के अंदर कोई डाटा स्टोर नहीं है। तो ये बूल एक्चुअली ये बूल फंक्शन है जो अगर टॉप इज इक्वल टू -1 हो तो ये ट्रू रिटर्न कर देता है, अदरवाइज फॉल्स। मतलब कि अदरवाइज का मतलब है कि उसके अंदर डाटा स्टोर है। और द फिफ्थ ऑपरेशन इज फुल। ये बिल्कुल इस एम्प्टी की तरह काम करता है कि अगर उसके अंदर जब हमारी कंडीशन टॉप इक्वल टू 4 हो, ये हमारी कंडीशन मैट हो जाए, तो इसका मतलब होता है कि स्टैक हमारा फुल है, हम और डाटा उसके अंदर इंसर्ट नहीं करवा सकते। उस कंडीशन को कहते हैं ओवरफ्लो कंडीशन। और अदरवाइज द स्टैक इज नॉट फुल। कुछ भी हो, मतलब उससे 4 से लेस कुछ भी वैल्यू हो तो ये कह देगा स्टैक इज नॉट फुल। और काउंट ये हमें ये बताता है कि स्टैक के अंदर कितने एलिमेंट्स, कितने जो है एलिमेंट स्टोर हैं। तो इसको हम टॉप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और ये भी एक फंक्शन है, वॉइड फंक्शन है, जो सिर्फ और सिर्फ हमें ये बताता है कि स्टैक के अंदर कितनी हमारे पास एलिमेंट्स हैं। और चौथा है उसके बाद छठा, सॉरी, सातवां हमें हमारे पास है चेंज का फंक्शन, जिसमें हमें पोजीशन बतानी होती है और वैल्यू पास करनी होती है कि हमने इस पोजीशन पे ये वैल्यू चेंज करनी है, प्रीवियस वैल्यू को रिमूव करके न्यू वैल्यू हमने देनी है। तो उसके लिए हम चेंज का फंक्शन यूज करते हैं। और डिस्प्ले, सारे डाटा को शो करवाने के लिए, जो स्टैक के अंदर जितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उनको शो करवाने के लिए हम लोग डिस्प्ले का फंक्शन यूज करते हैं। और जो हमारा बेसिक चीज थी वो था इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन ऑन स्टैक, that stack in data structure is, कि हम जो स्टैक है डाटा स्ट्रक्चर में वो क्या है। इसके लिए हमने अभी दो चीजें पढ़ी हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो डाटा हम लास्ट पे स्टोर करवाते हैं उसको हम सबसे पहले आउट करवाएंगे। और फर्स्ट इन, और द सेकंड है फर्स्ट इन लास्ट आउट। Stack in data structure is last in first out and first in last out. And the next is the process of inserting a data in stack is, जो हम स्टैक के अंदर डाटा इंसर्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन कि अगर स्टैक के अंदर प्लेस हो तो हम उसके अंदर डाटा इंसर्ट करवा दें। अगर स्टैक हमारा फुल है तो हमारी मतलब उसके अंदर हम कोई और स्टोर नहीं करवा सकते एलिमेंट, तो वो हमारे पास ओवरफ्लो कंडीशन होती है पुश ऑपरेशन के अंदर। एंड और द थर्ड क्वेश्चन इज इफ यूजर ट्राई टू रिमूव फ्रॉम एम्प्टी स्टैक देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड। अगर हमारे पास एक स्टैक है जो कि एम्प्टी है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एम्प्टी। का मतलब है टॉप हमारा जो वेरिएबल है वो इक्वल्स टू है -1। इसका मतलब है ये कंडीशन हमारे पास होती है अंडरफ्लो की कंडीशन, कि अगर यूजर एम्प्टी स्टैक में से डाटा रिमूव करवाने की कोशिश करे तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं अंडरफ्लो कंडीशन। और पुशिंग एन एलिमेंट इनटू द स्टैक, स्टैक के अंदर एलिमेंट पुश करना while the stack is already full, जबकि स्टैक पहले ही पूरा हो, उसके अंदर नया एलिमेंट स्टोर करवाने की जगह ना हो, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास अगर स्टैक है, अगर हमारे पास इसका साइज 3 है, 3, ओके, 3 3 2 and 1,
और हमारे पास स्टैक फुल है, इसके अंदर हमारे पास और डाटा स्टोर करवाने की जगह नहीं है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम कहते हैं ओवरफ्लो कंडीशन। हम इनकमिंग इन डाटा को स्टोर नहीं करवा सकते। डिफरेंस बिटवीन स्टैक और डायनामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक। स्टैटिक एंड डायनामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक, दैट अभी जैसे हमने पढ़ा है कि स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं बाय पुश और पॉप ऑपरेशन, एंड स्टैटिक जो डायनामिक रिप्रेजेंटेशन है वो हम नोड्स के थ्रू करते हैं। और जो स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन है उसमें हमारे पास जो फर्स्ट पोजीशन होती है उसमें हमारे पास स्टैक, उसमें हमारे पास एरे, और उसकी फर्स्ट पोजीशन जो बॉटम होती है हमारे पास, बॉटम ऑफ द स्टैक in static is 0, or the topmost position of stack in static is top. And in dynamic we use nodes in which bottom has a top value is equal to null, and now it passes the address in the next node. This is a basic difference in stack and dynamic representation of stack. Static and dynamic representation of stack. Name the basic operation which we can implement with stack. As we discussed about 8 to 9 basic operation which can implement with the help of stack. The first is push operation, pop operation, peek operation, count operation, change operation, and display operation, is empty, is full. These are all the operations which we can implement with the help of stack. Difference between peek and pop operation. Pop is our operation in which we remove a topmost element from the stack, and peek is the operation in which we access the position and display that element in that position, but not remove that element from stack. This is a basic difference between peek and pop. In linked list implementation of stack, which node is considered as top of stack? What is the condition called when top equal to -1? When top is equal to -1, then this condition is called underflow condition, as we discussed before. What indicates the bottom of stack? What is when in static representation, when array has a 0 position, this is the bottom of the stack in static representation. And in dynamic representation we have two nodes, and when top equals to null, this is the bottom of stack in dynamic. Here it will contain any value of stack. That's all. Now we will do एक stack की क्लास है और हमने सारे फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। इसके अंदर हमारे पास ये सारे फंक्शन पब्लिक हैं और हमारे पास दो प्राइवेट वेरिएबल हैं, एक एरे है हमारे पास इन डाटा टाइप की और एक वेरिएबल है टॉप इन डाटा टाइप का, जिसको हमने -1 से सेट किया हुआ है। और इसके स्टैक के कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने सारी एरे के जो एलिमेंट्स हैं उसको 0 से इनिशियलाइज करवा दिया है। और जो हमारा है डिस्प्ले का फंक्शन, ये क्या काम करता है? ये हमारा स्टैक के सारी एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाता है। हमने आई को 4 से इनिशियलाइज करवाया और हमने कंडीशन ये लगाई है कि आई जब 0 से पहले है ये सारी वैल्यूज इनिशियलाइज कर। मींस इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास पहली वैल्यू होगी जो वो सबसे पहले, जो हम लास्ट पे इन करवाएंगे वो सबसे पहले आउट होगी, और जो हम सबसे पहले इन करवाएंगे वो सबसे आखिर में बाहर आएगी। ये डिस्प्ले का फंक्शन ऐसे, ये रिवर्स स्ट्रिंग चल रही है, ये रिवर्स फॉर लूप चल रही है। और इज एम्प्टी ये बोल डाटा टाइप का है और ये हमें बताएगा कि हमारे स्टैक के अंदर और वैल्यूज को स्टोर करवाने की जगह है या नहीं है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, अगर ये चेक करेगा कंडीशन, अगर हमारा टॉप इक्वल टू -1 है, मींस स्टैक के अंदर कोई जगह नहीं है स्टोर कर, मतलब अभी कुछ भी नहीं है उसके अंदर स्टोर करवाने के लिए, तो ये उसको ट्रू रिटर्न कर देगा और बताएगा कि अभी हमारा जो है ये स्टैक ये एम्प्टी है।
और एल्स में अगर 0 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू होगी तो ये बता देगा, फॉल्स रिटर्न करेगा कि अभी हमारा स्टैक अभी ये एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर कोई वैल्यू है। इस फुल भी सेम ऐसे काम कर रहा है कि अगर हमारा टॉप इक्वल्स टू 4 है, टॉप मोस्ट एलिमेंट तक हमारी जो टॉप मोस्ट पोजिशन है ना, वहां तक हमारा स्टैक फुल है, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। इसका मतलब है कि ये इस फुल, पूरा स्टैक फुल है। और उसके अलावा अगर उससे कम, 4 से कम, 3 2 1 0 कुछ भी वैल्यू होगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगला है पुश ऑपरेशन। ये क्या काम करता है, इसमें हमने एक वैल्यू पास करनी होती है जो इसने वो जो इसने सेट करवानी होती है। और हमने फर्स्ट कंडीशन लगाई है, अगर हमारा टॉप इक्वल्स टू 4 है, मतलब हमारे स्टैक में और जगह नहीं है तो इन करवाने की, तो ये शो कर दे स्टैक इज ओवरफ्लो। क्योंकि हम 5वीं पोजीशन पे तो अब सेट नहीं ना करवा सकते, क्योंकि ये 0 से लेकर 4 तक है, तो ये बता देगा कि हम न्यू इनकमिंग एलिमेंट्स जो है उनको इंसर्ट नहीं कर सकते। और एल्स में हमने प्लस प्लस, अगर हमारे पास 0 1 2 3 कोई भी इनमें से पोजीशन है तो हम टॉप को प्लस प्लस करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम उस पोजीशन पे उस वैल्यू को स्टोर करवा देंगे जो हमने एज अ आर्ग्यूमेंट मेन से पास की है। और उसके बाद हम पॉप ऑपरेशन का क्या काम होता है, ये टॉप मोस्ट एलिमेंट को डिलीट करवा देता है। तो अगर मैंने कंडीशन लगाई है, अगर हमारा टॉप जो है इक्वल्स टू -1 है, तो ये शो करवा दे स्टैक इज अंडर फ्लो, मतलब स्टैक के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो ये किसको डिलीट करवाएगा, ठीक है, ए। और दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि द वैल्यू विच इज पॉप आउट, सबसे पहले वो वैल्यू बता देनी है जिसको हम पॉप आउट करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उस पोजीशन पे उसको 0 कर देना है और टॉप माइनस माइनस करते हैं, ठीक है, ओके। वो फिर उस एलिमेंट को डिलीट करके वहां पे 0 शो करेगा वैल्यू, ये काम कर रहा है। और काउंट जो है ये हमें बता रहा है कि हमारे स्टैक के अंदर कितनी एलिमेंट्स, एक्चुअली कितने एलिमेंट्स हैं। तो हमने 0 से इनिशियलाइज कर, 0 से स्टार्ट होगा ना स्टैक, तो फिर वो साइज साइज -1 के इक्वल उस वहां तक हमारा टॉप होगा, तो हम टॉप +1 इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू शो करे। ये हमें वहाँ ये हमें बताएगा कि हमारे स्टैक के अंदर कितने एक्चुअली जो है वो एलिमेंट्स हैं। अगला ऑपरेशन है हमारे मेथड है हमारे पास पीक, जो हम पोजीशन पास कर रहे हैं, ये पैरामीटर जो हमने पास किया है पोजीशन का, हम उसको एरे के अंदर रखवाएंगे। ये सिर्फ हमें शो कराएगा कि उस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट जो है वो मौजूद है, उसकी वैल्यू क्या है उस पोजीशन पे। पीक जो है वो सिर्फ ये काम करेगी, ये कुछ डिलीट नहीं करवाएगी उसके अंदर से। पीक और पॉप के दरमियान बेसिक डिफरेंस भी यही था। और जो चेंज का है, ये क्या करेगा, हम पोजीशन पास कर रहे हैं पैरामीटर में और ये वेरिएबल पास कर रहे हैं, हम उस पोजीशन को एरे के अंदर रखेंगे, ठीक है, और उस पोजीशन पे उस वैल्यू को स्टोर करवा देंगे। ये ऑटोमेटिकली प्रीवियस वैल्यू को रिमूव करके न्यू वैल्यू वहां पे ये वाली स्टोर करवा देगा जो हम पीछे से पास करेंगे एज आर्गुमेंट, ठीक है। ये हमारी क्लास थी स्टैक। और मेन के अंदर क्या काम हो रहा है, हमने स्टैक का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, इसके थ्रू हम सारे उसके मेथड्स को एक्सेस करेंगे। और ये हमारे पास एक मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम हमने बना लिया कि हम अपनी मर्जी से जिस फंक्शन को एक्सेस करना चाहे हम कर सकते हैं। अगर यूजर 1 प्रेस करेगा तो पुश का मेथड कॉल होगा, 2 तो पॉप, 3 पीक, लाइक दिस। अब देखें, इसको चला के एक दफा देख लेते हैं। Now first we have to display the string as in constructor. We set all value elements of stack with 0. So it is showing that all elements are 0. Okay. Now first apply the push operation 1, enter the value you want to store 5. Okay. Now now display the whole stack. The 5 is stored at the last position of the stack. Okay. I think we have to now try to pop out that 2. Which value, the value which is pop out is 5. 5 is pop out from the stack. Now display again
Now this is showing again the stack is 0, whole stack is 0. Okay, now I think we have to fill the stack and now check other functions. 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1. Okay, now 1 9. This is showing the message that stack is overflow, means there is no place to insert more data into the stack because stack is filled. We cannot insert any more data into the stack. Okay. Now display the stack. Now first we have to clear the screen and display the stack. This is showing the stack. This is showing the value 5 4 3 2 1. Okay. Now pop out the last value 2 for pop out. Which value, the value which is pop out is 9. 9 is pop out from the stack. Now display it. As you can see, there is no 9. 9 is pop out in place of 9. There is 0 on that place. Okay. Check the peak operation. Enter the position you want to check. I think first position. The value at that position is 4. This is a 0 position. This is a first position. First position there is a 4. It is showing correctly. Okay. Clear the screen and now move the forward. For check, I think we have to check 5 is full or not. 5, the stack is not full. There is one place as we pop out the topmost value, there is a place at the topmost value. Okay, now check is empty. 4, stack is not empty because 4 places in stack are full, so there is no place in the stack. This function is working correctly. Okay, now check 8, clear the screen. This is working very well as we check in the whole exe file. Now display function is also working correctly, and now terminate the program. That's it. Thank you.